भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बनाए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज हम बात करने वाले हैं जेई मेन वर्सेस जेई एडवांस्ड की। आप में से बहुत से लोग अभी जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो। कुछ लोग सिर्फ एक आईआईटी का सपना देख रहे हो, तो वो लोग जेई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा हर दिन 6 8 10 घंटे की मेहनत कर रहे हैं। बट द रियलिटी इज आपको जेई मेन फनल करता है और जेई एडवांस में आपका कॉन्सेंट्रेटेड कंपटीशन होता है। तो उसको लेके आज हम बात करने वाले हैं। और बट क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि यार, एक डाउट है आप सबके माइंड में कि यार कौन सा कोचिंग एकेडमी बेस्ट होगा आपके जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के प्रिपरेशन के लिए। सो आई हैव गॉट द परफेक्ट आंसर टू दिस। सो the best coaching to enroll for maximum utilization of resources and time with bang on strategic sessions, according to me, with experienced mentors, I have the suggestion for Amazon Academy. Be it live sessions with the experienced and expert teachers or their AIMT, which stands for All India Mock Test Series, Amazon Academy stands way ahead of any other platform. To add to this, the liberty to practice questions from the JEE and NEET syllabus and the availability of daily tips and tricks involving shortcuts, mnemonics to memorize important concepts adds cherry on the top. But why only Amazon Academy and no other platform? It's because it aims to achieve systematic learning, and it also aims at testing your cognitive skills by preparing you with similar questions of what has been asked previously in JEE or NEET, so that you have a fair share of idea as to what to expect on the doomsday. I have personally used the application and found it to be quite useful and organized to help you carry out your targets. It also aims at unleashing the winning edge to take you one step closer to your dreams. I have also given the link in the description, guys. Kindly check it out और मुझे इसका एक फीडबैक जरूर देना कि आपको Amazon Academy कैसा लगा। ठीक है। So today we are going to be focusing on the battle of the competitive examination. लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको देख लेते हैं। In the battle of JEE Main versus JEE Advanced, it all boils down to the individual's preparations and strategies to tackle two of the toughest examinations to crack in India. JEE Main caters to the triple IITs, NITs and GFTIs. यानी कि अगर आपको triple IITs, NITs और GFTIs में एडमिशन चाहिए, you have to take up the JEE Main examination. But JEE Advanced serves as the lone entrance for the reputed IITs of India. JEE Main, being the initial funneling round of the engineering aspirants, also provides seats at even all India ranks of 1 lakh. But in order to secure a seat via JEE Advanced, your all India rank must be within the 15,000 mark. और इसमें भी मैं बोलूंगा यहाँ पे आपको, अगर आपकी रैंक 15,000 के आसपास भी है ना, आपके पास ऑप्शन ज्यादा ही रहेंगे। अगर आपको ज्यादा ऑप्शन चाहिए, आपको 5,000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक लानी पड़ेगी, तब जाके आपको ऑप्शंस मिलेंगे कंसिडरिंग योर जनरल मेल एस्पिरेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्पिटिशन सीट और कॉलेजेस के बेसिस में हम आज जेई मेन वर्सेस जेई एडवांस को देखने वाले। सबसे पहले कंपटीशन देख लेते हैं। ये सारे लास्ट ईयर के स्टैट्स है, उस हिसाब से मैंने इस पूरी पीडीएफ को बनाया है। कंपटीशन 9.5 lakhs in JEE Mains and only 2.5 lakhs in JEE Advanced। अब आप लोग बोलोगे यार यहाँ तो कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन ये भी देखो, ये जो 2.5 लाख है वो इसके टॉप बच्चे हैं। सो दिस इज बेसिकली द डाइल्यूटेड कंपटीशन। डाइल्यूटेड कंपटीशन है आपका जेई मेन में, जब 9.5 लाख लोग दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आप अगर इस टॉप के 2.5 लाख में आ गए तो आप टॉप के 2.5 लाख लोगों से ही विस कंपीट कर रहे हो। इसमें 7 लाख लोग जेई मेन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और सिर्फ इनमें से 2.5 लाख लोग एक कॉन्सेंट्रेटेड कंपटीशन में जेई एडवांस में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। अब अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। मुझे बहुत सारे यार रोज मेल आते हैं। एक बंदे ने इवन मेल रिपीट में लगा के रखा है, मेरे को उसका 3 महीने से हर दिन मेल आ रहा है कि यार जेई एडवांस का अपन को अटेम्प्ट इंक्रीज कराना है, उसको लेके कुछ करो। बट एज ऑफ नाउ पिछले 2 साल से कोविड है, बट कुछ भी जेई एडवांस के अटेम्प्ट्स नहीं बढ़े हैं। जेई मेन के सिर्फ और सिर्फ आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, जेई एडवांस के आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। बट नोट, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ योर 12th बोर्ड्स ईयर। इसका मतलब आपने अगर मान लो 2020 में अपना 12th बोर्ड दिया था, यानी कि आप अपना जेई मेन 2020, 2021 और 2022 को दे सकते हो। ठीक है। अगर मान लो आपने 2022 को अपना जेई एडवांस्ड पहली बार लिखा है और अगर आपका बोर्ड था 2021 में, समझ रहे हो, 2022 में आपने जेई एडवांस दिया, 2021 में आपने
बोर्ड दिया था, इसका मतलब आप 2023 में वापस जेई एडवांस नहीं दे सकते, इंक्लूसिव ऑफ द बोर्ड ईयर। यानी कि अगर मान लो एन ईयर में आपने बोर्ड दिया है तो आप जेई एडवांस n+1 ईयर तक दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने एन ईयर में जेई मेन के लिए पहली बार फॉर्म अप्लाई किया था और आपने बोर्ड्स के लिए भी उसी साल दिया है, तो आप n+2 ईयर तक आप दे सकते हो जेई मेन, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन द पैटर्न एस्पेक्ट। ओके, नाउ पैटर्न के अपन जब बात कर रहे हैं, JEE Main usually has 90 questions, out of which the recent pattern had 15 optional questions। ये सारे आपके न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं, आपको एमसीक्यू में कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप में ऑप्शन मिलते हैं। न्यूमेरिकल टाइप में आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं पूरे मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। उसमें से भी आपको फनल करना पड़ता है कि आपको कितने क्वेश्चन उसमें से करने हैं, आधे करने होते हैं, आधे छोड़ने होते हैं। ओनली 180 मिनट्स टू सॉल्व दिस, एंड JEE Main बेसिकली यूजुअली चेक्स the basics, speed and accuracy of the students in physics, chemistry and mathematics। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे JEE Advanced की बात करूं, JEE Advanced in itself has 2 papers, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका 3 घंटे का, पेपर 2 आपका 3 घंटे का। JEE Main आपका 3 घंटे का होता है, ये आपका पूरा मिला के 6 घंटे का होता है। इंडिविजुअल PCM के भी कट ऑफ होते हैं, बट डरिए मत, इंडिविजुअल PCM के कट ऑफ ऑलमोस्ट 10 से 15% के ऊपर कभी जाते नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका फिजिक्स 120 नंबर का आ रहा है, कट ऑफ 12 से 18 के बीच में एट मैक्स रहेगा, केमिस्ट्री का भी 12 से 18 के बीच में, मैथमेटिक्स का भी 12 से 18 के बीच में। यूजुअली अराउंड 360 टू 372 मार्क्स इन टोटल एवरी ईयर। हमको एग्जैक्ट मार्क्स कभी नहीं पता चलते JEE Advanced के, अनलेस आप पेपर देने बैठ गए हो। कभी कभी JEE Advanced आपका 504 नंबर का भी हुआ है और कभी कभी 360 का भी हुआ है। तो आप देख सकते हो रेंज कितना 144 मार्क्स के बीच में आज तक पूरा वेरी कर चुका है आपका JEE Advanced, ठीक है। JEE Advanced चेक्स डेप्थ एंड एप्लीकेशन एबिलिटी इन यू। आप जो पढ़ के आए हो, मान लो 4 कॉन्सेप्ट्स आप अलग अलग चैप्टर से पढ़ के आए हो, उनका आप साथ में मर्ज कैसे करते हो, JEE Advanced आपका उस चीज का टेस्ट है। आप कैसे उस चीज को अप्लाई करते हो, जितना आपने नॉलेज गेन किया है लास्ट के 2 साल या फिर 3 साल ऑफ प्रिपरेशन के, JEE Advanced बेसिकली चेक्स दैट। अब बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल की। आई हैव बेस्ड इट ऑन अ टोटल डिफिकल्टी लेवल ऑफ 5। आई वुड रेट JEE Main टू बी ऑफ 3 आउट ऑफ 5 डिफिकल्टी एंड JEE Advanced फॉर 4.5 आउट ऑफ 5 डिफिकल्टी। क्यों? क्योंकि इसका जो मार्किंग स्कीम है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपके -2 मार्किंग सिस्टम भी रहती है अगर आप गलत करते हो तो उसकी वजह से, और जो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स गैदर करके एक क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। तो यार इसीलिए दिस इज touted as one of the toughest examinations, मेरे हिसाब से the toughest examination in the Indian competitive exam arena। ओके, अब बात कर लेते हैं गुड स्कोर की। गुड स्कोर क्या होता है JEE Main और JEE Advanced में? अगर आप JEE Main की बात करो, 300 में से अगर आप 165 यानी कि 55% स्कोर भी कर लेते हो, इट कैन फेच यू अ डिसेंट कॉलेज वाया JEE Main एग्जामिनेशन। बट कुछ कुछ शिफ्ट्स में अगर वो इजी आ गया, ये 55% शूट करके 65% तक भी जा सकता है। वही अगर मैं बात करूं JEE Advanced की, मैं आपको श्योरिटी से बोल सकता हूं 40% विल बी मोर देन सफिशिएंट टू गेट यू अ टॉप IIT, मीडियोकर ब्रांच और अ सेकंड जेन IIT, जो आपके नए वाले IIT से लाइक IIT आपका धारवाड़ हो गया, IIT भिलाई हो गया। यहां पे आपको टॉप ब्रांच के लिए 40% के लिए जरूरत है बस। या फिर अगर आपको जो पुराने IITs है, बेस्ट IITs, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, ऐसे IITs, वहां पे भी अगर आपको मीडियोकर ब्रांच चाहिए, 40% आई गेस शुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब बात करते हैं सीट्स अवेलेबल के। कितने सीट्स अवेलेबल है आपके JEE Main और JEE Advanced के थ्रू? JEE Main के थ्रू आपके 23,506 सीट्स अवेलेबल है, और आपके NIT में यहाँ पे इतने सीट्स अवेलेबल है, और ट्रिपल IIT में बेसिकली आपके 3,433 सीट्स अवेलेबल है। बट आप ऐड करोगे तो 27 के हो रहा है, लेकिन मैंने बोला था यार 1 लाख बच्चे के आसपास आपके JEE Main के थ्रू एडमिशन लेते हैं। क्यों? एक बात समझते हैं, ठीक है। जितने भी आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, आप उनमें भी कभी कभी JEE Main के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉलेज लाइक TIET, अ वेरी रिनाउंड कॉलेज, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप यहां पे भी JEE Main के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ऐसे तमाम कॉलेज है इंडिया में जहां पे आपका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ JEE Main हो जाता है, भले वो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ही क्यों ना हो। इसीलिए बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 80K to 1 lakh people take admission via their JEE Mains rank। वही अगर मैं बात करूं JEE Advanced की,
आपको सिर्फ और सिर्फ आईआईटी मिल रहा है 12,463 सीट्स आर ओनली अवेलेबल। अब आप बोलोगे यार भैया आप 15,000 तक बोल रहे थे, इसमें से भी तो कुछ बच्चे ना टॉप के 15,000 में एनआईटी जाते हैं सीएस लेने के लिए, या फिर आपके बिट्स जाते हैं, या फिर आपके वो अब्रॉड भी जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके जे एडवांस में सिर्फ और सिर्फ 12,463 सीट्स एंटाइटल्ड होते हैं। बट जेईई मेन में अगर आप देखोगे 80K टू 1 लाख लोग जेईई मेन के थ्रू एडमिशन ले रहे होते हैं। अब मेरा ओपिनियन आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि मैं जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों दे चुका हूं। बीइंग अ फॉर्मर जेईई एस्पिरेंट, I need to tell that JEE Main is a very precious exam for 98.5% of JEE aspirants, because only and only 1.5% students get admission via JEE Advanced. आप यहाँ पे जो नंबर देख रहे हो 12,463 का, that constitutes only 1.5% of the students who are in fact giving JEE Main. इवन उससे भी कम है थोड़ा, ठीक है। सो बाकी के 98.5% लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जेईई मेन बिकम्स द नूमेरो उनो एग्जामिनेशन, ठीक है। अब I have seen many people working very hard for JEE Advanced, but to make it to the top 1.5% is really difficult. कई बार वो आपके हाथ में भी नहीं होता है। ऑन द डूम्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आप प्रेशर में आप क्रम्बल कर गए, आप प्रेशर में आपसे हाथ नहीं चल रहा, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे कॉन्सेप्ट्स, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो यार वही बात है कि यार हार्डवर्क ही हर चीज नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत एग्जाम स्ट्रैटेजीज और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना ऑन द लास्ट डे, नर्व्स हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। इसीलिए मेकिंग टू द टॉप 1.5% इज रियली रियली डिफिकल्ट। इट इज नॉट ओनली हार्ड वर्क बट साइकोलॉजिकल ऑल्सो। आप वहां पे देख सकते हो कि यार बहुत ज्यादा डिमांडिंग है आपके लिए जेईई एडवांस, ठीक है। जेईई मेन श्योरली गिव्स यू फार बेटर रिटर्न्स फॉर अ सिमिलर पर्सन विद अ रैंक ऑफ 15,000 and 65,000 इन बोथ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। अगर आपकी रैंक 15 से 65,000 के बीच में जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में, तो आपको जेईई एडवांस के थ्रू ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जेईई मेंस के थ्रू आपको बहुत तगड़े कॉलेजेस में बहुत तगड़े तगड़े ब्रांचेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, टेक एवरी एग्जाम एट अ स्टेप। फर्स्ट बिकम अ मास्टर ऑफ मेंस एंड देन बिल्ड अप ऑन योर एबिलिटी टू जेईई एडवांस्ड। पहले यार एक एक कदम करके आप ऊपर बढ़ते हो ना, आप छोड़ छोड़ के थोड़ी कूदते हो। इसीलिए बोलो छोड़ छोड़ कूदोगे तो नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। लेकिन पहले जेईई मेन के लिए प्रिपेयर करोगे। अगर जेईई मेन के आपके नॉर्मली इस साल 2 भी हो सकते हैं अटेम्प्ट, 4 भी हो सकते हैं। अगर 2 भी हुए पहले अटेम्प्ट में फोड़ दो, दूसरे अटेम्प्ट के लिए आपको 3 महीने के आसपास मिलेगा। उसमें जेईई एडवांस का भी तैयारी कर लो, जेईई मेंस का भी तैयारी कर लो, लेकिन कम से कम अपने लिए पहले एक बैकअप सेट कर लो जेईई मेन के लिए। अगर आप जेईई एडवांस को अपना सपना देखते हो, कम से कम एक बैकअप भी रहेगा ना, तो ऊपर से अगर गिरोगे तो उस बैकअप के ऊपर गिरोगे, वरना आपके पास ड्रॉप लेने का या फिर एक टियर 2 या फिर टियर 3 कॉलेज में एडमिशन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा, ठीक है। सो प्लीज फर्स्ट फोकस ऑन जेईई मेंस एंड देन फोकस ऑन जेईई एडवांस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक भी देके रखे, उसको ज्वाइन कर लो। वहां बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल।